Hello everybody, this side Rahul, and today we are going to study about geography part, social study, geography part, chapter number first, and the chapter name is a resource and development. Right. So today we start a first chapter of the geography sections, and the chapter name is resource and development. Of the first section is that is what is a resource. First you know about the chapters part like a resource and development, but we need to discuss about the first resource क्या है. Resource, if you're talking about the resource, that means everything, anything that can be fulfill the need of the person, or like we know everything available in the earth, in the surface, everything available in the environment, in the climate, that is fulfill your need and want, that is a resource. The basic definition of the resource, like everything available in our environment which can be used to satisfy our needs and provide itself, right? This is the basic definition of a resource, right? Next things, the resource, like for example we see like a laptop, we use like a technical gadgets, right? ठीक है, speaker, screens, mobile, these are the resource that is fulfill your needs, right? जो basic needs है human की, अगर वो किसी से fulfill हो रहे हैं, we can say like a resource. For example like I need a water is a resource, ठीक है. I am breathing, मैं सांस ले रहा हूँ, oxygen like gases जो हैं, that is a resource. Air resource, right? So these are the some resource that is completely provided by the natural or human, but we satisfy about that anything that can be हमारी जो needs है वो अगर fulfill हो रही है, that means we can say like that is a resource. But resource, if you see like resource can be technically हम लोग देखें तो that like a physical resource or human resource, या फिर we can like a natural resource or human resource, but we have a interconnected with the nature, right? How? For example like a human is interconnected, we have an intimate relationship with the nature, like for example like this is a human being, physical environment like a nature, so we can human interact with the physical environment like nature, and we interact the nature if we found, for example like if any region we found that is a good for the resource, then directly we can through the extract we can interconnect with the nature through the technology. We use a technology. If for example in any earth, in any region, we think like that region is good for the resource, like we can extract, हम वहाँ पे through mining या फिर through technology हम उस resource को क्या करेंगे, फाउंड करेंगे, राइट? ठीक है. तो a human interact with the physical natures and through the technology हम क्या करेंगे उसको, for example like we need like for any region that is suitable for the resource like a oil, right? So through technology we interact with the nature, we extract that particular region, and then through technology we can transfer their forms and we create institutions we create like a oil industries, petroleum industries, mining industries, and then that is also a good for our economic development, we can say. Like for example like suppose we think like a gold is also a resource, right? ठीक है. गोल्ड को हम इकोनॉमिकली कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल लाइक द 3 वर्ड्स, we focus about these 3 words. What are these? For example like this one, technology, accessible. We focus on these were economically feasible and the culturally acceptable, right? For example like any resource, human being, any resource we interact with the physical like nature, through technology we extract that resource, but जो resource हम लोग use करेंगे, जिस resource के लिए हम लोग सर्च करेंगे, that is culturally acceptable होना चाहिए, मतलब ऐसा resource जिसको हमारी society accept करे. And what about the economically means suppose
we invest for the resource like 50 lakhs, that means 50 lakhs, but अगर हम रिसोर्स को रिफॉर्म करने के बाद में अगर जो हमारी कॉस्टिंग आती है दैट शुड बी प्रॉफिटेबल, राइट। तो इकोनॉमिकली भी हमें प्रॉफिटेबल होना चाहिए, इकोनॉमिक हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना चाहिए, दैट इज अ रिसोर्स। तो बेसिकली वी फोकस अबाउट द 3 words प्रोवाइडेड, इट्स अ टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिक फिजिबल एंड द कल्चरली एक्सेप्टेबल, राइट। नेक्स्ट, right, human being interact with the nature through technology and create an institution. We already discussed about that accelerate where economic जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी हम लोग बेसिक रिसोर्स पे जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे दैट शुड बी प्रॉफिटेबल। अब नाउ फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ रिसोर्स, नेक्स्ट पॉइंट, classification of resource. Basic of the classification, the resource can be classified into 2 categories. One is a natural resource and the second one is a human resource. First we're talking about the natural resource. Natural resource is also classified into 2 categories, renewable resource और non renewable resource. ऐसे resource जिनको हम लोग reuse कर सकते हैं, ऐसे resource जिनको हम लोग reuse नहीं कर सकते, right. Renewable resource is also can be classified into continuous जो flow में रहते हैं like wind, like water, and biological is also classified in the 2 categories like natural vegetations and the wildlife, we can say like a forest, ठीक है, and wildlife. Non renewable resource can also classified into 2 categories. The first one is a recyclable, like metal we can recycle for that particular resource, and non recyclable like fossil जो fuels होते हैं like coal, ठीक है. The second category is a human resource. Human resource can also classified into 2 categories like structures and institutions and quantity and quality. Any resource we found for the technology we create institutions and we also check the quality and quantity. That means कि कितनी quality तक और कितनी quantity तक हमें वो resource मिल सकते हैं, right? Next, नेचुरल रिसोर्स. व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्स? देखो एनी नेचुरल दैट मीन्स जो हमारे गिफ्टेड है विच इज क्रिएटेड बाय द नेचर, उसमें कहीं भी ह्यूमन बीइंग का रोल प्ले नहीं है. तो ऐसे रिसोर्स दोज आर विच आर क्रिएटेड बाय द नेचर्स, नेचर के द्वारा क्रिएटेड, फॉर एग्जांपल लाइक लैंड, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, एटमोसफेयर, हमारे जो क्लाइमेट्स है, विंड, दैट इज अ रिसोर्स दैट इज बेसिकली इज क्रिएटेड बाय द नेचर. इसमें कहीं भी ह्यूमन बीइंग का रोल प्ले नहीं होता है. ऐसे रिसोर्स को हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट, अब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स और वी कैन से लाइक अ टाइप ऑफ रिसोर्स. Type of resource can be classified into the 4 categories like on the basis of origin, on the basis of accessibility, on the basis of ownership, and on the basis of status of development. We study about the first on the basis of origin. Talking about on the basis of origin, first that is a biotic resource and biotic resource की हम लोग बात करें, the biotic resource as it's obtained in the biosphere, that means we have some livestock, we have some life, that word means जिनमें जीवन है, ऐसे रिसोर्स जिनमें जीवन है, लाइफ स्टॉक है, सच एज फॉर एग्जाम्पल जो मूवमेंट्स कर सकते हैं, जिनकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फ्लोना, लाइक विजिटेशंस, फिशिंग इंडस्ट्री जो है, फिशर्स हम लोग बोल सकते हैं, फिशरी एंड द लाइफ स्टॉक, राइट. तो एट दैट टाइप ऑफ रिसोर्स, दैट मीन्स दैट रिसोर्स हैव सम लाइफ स्टॉक, जैसे लाइफ सम बायोस्फीयर्स हैं जो मूवमेंट्स कर सकते हैं, जिनकी ग्रोथ हो सकती है, ऐसे रिसोर्स को हम लोग बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं. द सेकंड इज अबायोटिक रिसोर्स. ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन में हम लोग सेकंड टाइप है अबायोटिक रिसोर्स. अबायोटिक रिसोर्स ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें लाइफ स्टॉक नहीं है, राइट. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ जिनमें लाइफ नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है, कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स are called abiotic resource. Basic you need only the difference, like ऐसे रिसोर्स जिनमें लाइफ है, जीवन है, that is called as a biotic resource. ऐसे रिसोर्स जिनमें लाइफ नहीं है, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं लाइक abiotic रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल रॉक्स जो हमारी चट्टान हैं एंड द मेटल्स.
नेक्स्ट, दिस इज द एग्जाम्पल बायोटिक लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, फंग्स एंड बैक्टीरिया. वी हैव अ लाइफ स्टॉक इन दिस रिसोर्स. वी टॉकिंग अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ वाटर, सॉइल, विंड, लाइट, सनलाइट इनको हम बोल सकते हैं, मिनरल्स एंड एयर. दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स. इनको हम लोग बोलते हैं एज अ एबायोटिक रिसोर्स. नेक्स्ट, द सेकेंड इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी की हम लोग बात करें, सेकंड जो हमारा रिसोर्स है, ऑन द फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एबायोटिक रिसोर्स. द सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी renewable and a non-renewable. Renewable resource which are renewable means reuse और renewed हम लोग उसको reproduce कर सकते हैं. हम लोग reproduction like physical हो या फिर वो chemical हो या mechanically through the techniques, through the technical process, through the condensations, through the mining हम लोग इनको change कर सकते हैं. For example like a solar and wind energy, right? ठीक है, water forest हो गए, वाइल्ड लाइफ होगी, these are the some renewable resource like. और ये केस में आता है renewable resource is also classified into two like continuous flow resource. last slide we discussed about that wind and water is also a continuous or a flow resource जो हमें continuously मिलते हैं. second is a non renewable resource. non renewable resource are form और जिनको बनने में काफ़ी millions of years लगते हैं. ऐसे रिसोर्स जो आप करंटली हम लोग बात करें लाइक 2 years 5 years 10 years में नहीं बनते हैं, जिनको बनने में काफ़ी लॉन्ग पीरियड लगता है, लॉन्ग जियोलॉजिकल प्रोसेस है उनका, ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है. और उनको हम लोग 2 कैटेगरीज में ले सकते हैं. एक रिसाइकेबल रिसोर्स जिनको हम लोग किसी दूसरे ट्रांसफॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं लाइक मेटल, एंड द नॉन रिसाइकेबल रिसोर्स जो हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में लाइक फॉसिल फ्यूल्स विच कैन नॉट बी रिसाइकल. मतलब अगर वो लिमिटेड है तो लिमिटेड है. फॉर एग्जाम्पल लाइक वी हैव अ बाइक, ठीक है, बाइक में वी नीड अ पेट्रोल, ठीक है. तो if we use a 1 liter petrol, definitely according to the bike average we can go at least 45 km or 50 km. after that we need a petrol. तो that means ऐसे रिसोर्स जो बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में, ठीक है, उनको हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी जो हमने अभी देखा है, रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक प्लांट्स हैं, लाइक सोलर लाइट्स है हमारे यहाँ पे, विंड एनर्जी है. ऐसे रिसोर्स जो हम लोग नॉन रिन्यूएबल हैं लाइक कोल, ठीक है, ऑयल हो गया हमारा जो भी ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं, एंड विंड है, जो ऐसे रिसोर्स जिनको हम लोग वापस से रिसाइकिल क्रिएट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप रिसोर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इंटू 4 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज ए इंडिविजुअल रिसोर्स, second one is a community owned resource, third one is a national resource, and the fourth one is a international resource. Individual resource which are operated by an individual or a group of individual, or we can say like owned by individual, that is called a individual resource, or we can also call a ownership resource, right? ठीक है. For example like land, a farmer have a land that is also taken by the government for submit some revenue, right? ठीक है, कॉस्टिंग के पर्पज से उसने लैंड लिया, तो दैट मीन्स ही इज द पर्टिकुलर ओनर ऑफ दैट लैंड. पास्चर एरियाज, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्थ, दीज आर द सम रिसोर्स दैट इज इंडिविजुअल पर्सन कैन ओन, राइट? ठीक है, तो ऐसे रिसोर्स जो ऑपरेटेड किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, उनको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स. नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑन रिसोर्स. नेक्स्ट, कम्युनिटी रिसोर्स, सी दैट वर्ड. कम्युनिटी इज बेसिकली दैट इज, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वर्ड कम्युनिटी मीन्स सोसाइटी, राइट? ठीक है, तो कम्युनिटी ऑन रिसोर्स मीन्स ऐसे रिसोर्स विच कैन मैनेज बाई ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटीज, ऑल द मेंबर ऑफ द सोसाइटीज. ऐसे रिसोर्स को हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल इन अ सिटी, इन एनी मेट्रो सिटी और इन some small cities we have a community centers. The community center is used by all the members of the societies for the festivals, for the meeting या for the other purpose, right? ठीक है, तो these ऐसे resource that is managed or operated
by the members of the community, members of the societies, that resource is called as a community resource, right? For example, like grazing grounds, that is almost is for all the animals, burial grounds for all the publics, societies, public parks, picnic spots, that is used by the all the members of the societies. Next, national resource. National resource, जो राष्ट्रीय जो रिसोर्स हैं, national resource are those resource which is related to the particular a nation. That means for example, we have a completely political boundaries, so that boundaries is belong to a nation, is called a India, right? ठीक है, तो according to that is related to a particular nation. जैसे for example land, we have a land boundary, the total जो land है country का, that is belong to one nation, that means उस पे जो sovereignty है उस particular land पे, वो किसकी है? ए नेशन की है, राइट? ठीक है. लैंड रिसोर्स आर विथ इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक रिसोर्स अप टू 12 नॉटिकल लाइन. फॉर एग्जांपल लाइक this 12 nautical line means a nautical line that is 1.9 kilometers belong to a 1 nautical lines, right? So 12 nautical lines, for example this is the coastline area and we go through like this is the 12 nautical lines. तो दिस इज बिलोंग टू द ओशन पार्ट, जो हमारा समुद्र के पास में जो हमारा तटीय क्षेत्र है वहाँ पे अगर हम लोग हमारी लैंड बाउंड्री से हम लोग देखें तो 12 नॉटिकल जो माइल्स है वहाँ तक किसके अंडर में है? राइट्स में सॉवरेनिटी पावर किसकी है? नेशन की है, उस पार्टिकुलर कंट्री की. एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ओशनिक रिसोर्स. तो यहाँ पे जो भी रिसोर्स हैं वो किसके हैं? उस पार्टिकुलर कंट्री के. दैट बिलोंग्स टू द पॉलिटिकल बाउंड्री जिसकी जहाँ तक है 12 नॉटिकल लाइन्स तक ओनली, राइट? ठीक है. दिस इज द कोस्ट लाइन एरिया ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जांपल इंडिया के हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो कोस्ट लाइन एरिया है इसमें 12 नॉटिकल लाइन हम लोग लेंगे. 1 नॉटिकल लाइन कितना होता है? 1.9 किलोमीटर. ये ध्यान रखना आप, ठीक है. द नेक्स्ट इज अ इंटरनेशनल रिसोर्स. ऑल दैज रिसोर्स विच आर मैनेज बाय द इंटरनेशनल. फॉर एग्जाम्पल लाइक ऐसे रिसोर्स जिनको इंटरनेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज करता है. फॉर एग्जांपल लाइक हम लोग इंडिया से ही चलेंगे, राइट? इंडिया, दिस इज बिलोंग अ कोस्ट लाइन 12 नॉटिकल लाइन, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है. आफ्टर 12 नॉटिकल माइल्स वी हैव अ 200 किलोमीटर. 200 किलोमीटर तक जो भी कोस्ट लाइन एरिया है ओशन में वहां तक किसका कंट्रोल है? कंट्री का. आफ्टर बियॉन्ड दिस, आफ्टर 1200 किलोमीटर्स के आगे का जो भी एरिया है दैट इज बिलोंग टू द इंटरनेशनल बाउंड्रीज. तो वहाँ पे जो भी रिसोर्स हैं उस पे किसका कंट्रोल है? हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल हम लोग बोल सकते हैं, जिन पर किसी दूसरे कंट्री का या फिर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोलिंग करता है. तो एक कंट्री का कंट्रोलिंग कहाँ तक होगा? 12 नॉटिकल लाइन प्लस में 200 किलोमीटर. 200 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स तक हमारा किसका कंट्रोल है? एक पार्टिकुलर कंट्री का. उसके बियॉन्ड में जैसे हम लोग बात करेंगे समुद्र में हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे और रिसोर्स हैं, ओशनिक रिसोर्स होते हैं या पेट्रोलियम जो मिलेंगे उन पे सब पे किसका कंट्रोल रहेगा? इंटरनेशनल कंट्रोल. ऑल दोज रिसोर्स विच आर मैनेज बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दे बिलोंग टू द वेरियस नेशन ऑफ द वर्ल्ड, जिनमें एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत से मेंबर्स क्या हैं, अदर कंट्रीज़ के लोग मेंबर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में या पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में, वो लोग ये रिसोर्स का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रपोजल, राइट? ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, द नेक्स्ट एंड द लास्ट रिसोर्स टाइप ऑफ रिसोर्स हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यू टॉकिंग अबाउट लाइक द फर्स्ट इज अ पोटेंशियल डेवलपमेंट. पोटेंशियल डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल लाइक students have a potential to crack the NEET exams, to crack the JEE Mains exam, but he's not work hard, for example, right? But if we motivate him or her, then definitely he can crack that exams. For example, that means the students have some potential. For example, like resource which have not been put to use but are found in a region, means ऐसे रीजन है, ऐसे क्षेत्र हैं कंट्री में जहाँ पे रिसोर्स हैं बट वी आर नॉट इन अ यूज. वाई?
दैट मीन्स और कॉल्ड अ पोटेंशियल लाइक राजस्थान एंड गुजरात बोथ आर ड्राई ऑन अ डेजर्ट एरिया है, राजस्थान तो पूरा हम लोग देखें, ठीक है। तो ऐसे प्लेस जो क्लाउडलेस हैं, जहाँ पे टेम्परेचर हाई है और वहाँ पे वी कैन यूटिलाइज सोलर एंड विंड एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो दैट मीन्स वी हैव अ स्कोप, वी हैव अ पोटेंशियल टू यूज द टेक्नोलॉजी, ठीक है, टू यूटिलाइज द सोलर एंड विंड एनर्जीज, बट वी आर नॉट, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट रिसोर्स जिनमें हमें है, हमें पता है कि वहाँ पे हमें रिसोर्स मिल सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी हम लोग उनका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। दिस रिसोर्स आर द पोटेंशियल रिसोर्स। द सेकंड वन इज अ डेवलप्ड रिसोर्स। इट इंक्लूड रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल एनी रिसोर्स वी फाउंड, हम लोग वहाँ पे प्रॉपर सर्वे करेंगे, आफ्टर सर्वे हम लोग वहाँ की क्वालिटी को मेजर करेंगे, उसमें क्वांटिटी हम लोग देखेंगे, एंड देन वी कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्स वाज कॉल्ड एज अ डेवलप्ड रिसोर्स। Potential resource, all those resource whose quality and quantity unlocked because the lack of technology, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका हम लोग प्रॉपर, मतलब वी हैव अ पोटेंशियल बट वी नॉट हैव अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, राइट, ठीक है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग वहाँ पे रिसोर्स को यूज। सेकेंड है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक मतलब ऐसे मेटेरियल फॉर द एनवायरमेंट विच हैव अ पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। दैट मीन्स ऐसे रिसोर्स जिनको अगर हम लोग प्रॉपर टेक्निक से हम लोग यूज करें, देन डेफिनेटली हम लोग उनको इन फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग उनको स्टॉक्स में रख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, दिस इज कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। स्टॉक रिसोर्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इन द यूज विद इन द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, हाउ टू पुट दैट यूज टू बी स्टार्टेड एंड दी कैन ऑल्सो बी यूज विद द फ्यूचर जनरेशंस। मीटिंग फ्यूचर्स के लिए भी हम लोग, फॉर एग्जाम्पल लाइक वी यूज इन अ प्रेजेंट, वी कैन फुलफिल योर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, बट ऑल्सो फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए भी हम लोग इनको स्टॉक्स में कर सकते हैं। राइट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की है कि रिसोर्स, what are the definition of the resource and what are the type of resource, right। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे what are the development and what are the planning of the development, resource planning and what are the different type of resource जिनकी हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, एक नई क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।